السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس کریں، اور اسی طرح جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیوز شیئر فرما دیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ چھوٹے اور بڑے بچوں کو، خصوصاً بڑے بچوں کو جنہوں نے پہلے قرآن کریم یا قاعدہ پڑھا ہوا ہے، حروف درست نہیں ہے، تجوید درست نہیں ہے، حروف تہجی کی درست ادائیگی کیسے درست کریں، اس کا سبق نمبر 7 ہے۔ اور اس میں آج ہم جس پوائنٹ پہ، جس نقطے پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہونٹ گول ہوں یا نہ ہوں۔ 29 حروف میں سے جس طرح کچھ حروف چھوٹے، کچھ حروف میں آواز چھوٹی، کچھ میں لمبی، کچھ میں زیادہ لمبی ہوتی ہے، کچھ حروف کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے منہ کھلتا ہے، کچھ میں نہیں کھلتا، اسی طرح کچھ حروف میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے۔ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ حرف کی قدرت نے یا اللہ نے جو ایک خاصیت رکھی ہے، یا حرف کی جو صحیح صورتحال ہے، وہ اسی وقت ادا ہوگی جب آپ اس کو اس سانچے سے، اس طریقے سے اس کو کریں گے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہے، جوسر مشین لے لیں یا کوئی بھی لے لیں، اس کا جو طریقہ ہے اس کو فٹ کرنے کا، بند کرنے کا، بالکل آپ ہو بہو اس پہ کریں گے تو وہ چلے گی، نہیں تو وہ نہیں چلے گی۔ یہی معاملہ حروف کا بھی ہے۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو یا بڑے بچوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کہ کس حروف میں ہونٹ گول کرنے اور کس میں نہیں کرنے۔ یہ بات ہم بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اس کے لیے آسان سا ہے، بچوں سے کہیں کہ جس حرف کے اوپر میں 0 ڈالوں یا میں او ڈالوں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ہونٹ گول کرنے ہیں۔ مثلا میں نے اس نون کے اوپر ڈال دیا اور واو کے اوپر ڈال دیا، بس۔ اب اس پہ بچوں سے ہونٹ گول کروائیں جی۔ نون، نون، واو، واو۔ دیکھیں جب واو آتا ہے تو اس کے شروع میں بھی واو ہے، درمیان میں الف ہے، اوپر مد ہے، آخر میں واو ساکن، واو سائلنٹ ہے، واو ہے اور اوپر جزم ہے جی۔ اب اس پہ بھی آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، اس پہ بھی ہونٹ گول کرنے ہیں، تو گویا نون، اس میں درمیان میں ہونٹ گول ہوں گے ایک ہی مرتبہ، لیکن واو میں آپ 2 مرتبہ ہونٹ گول کریں گے۔ واو، بچوں کے سامنے آپ کر کے دکھائیں، ہونٹ گول ہوں، بچوں سے کہیں باہر نکالیں۔ واو، درمیان میں منہ کھلے گا کیونکہ الف ہے بیچ میں، پہلے ہم نے سکھا دیا ہے، ہونٹ گول ہوں گے۔ واو۔ 29 حروف میں ان 2 حرف کے پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہونے چاہیے، باقی جو پیچھے 27 حرف رہ گئے ہیں ان میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ اب باقی ان 2 کی پریکٹس ہو گئی، اب بچوں کو باقی حروف پڑھ کے دکھائیں، ان سے کہیں پڑھیں الف۔ اب بچے اگر ایسے کریں الف، ہونٹوں کو ایسے کریں تو ان کو روکیں، ان سے کہیں اس پہ تو او یا 0 نہیں ڈالا ہوا، الف، با، تا، سا۔ اب دیکھیں بعض بچے جیم کو ایسے پڑھتے ہیں، جیم، ہونٹ گول کرتے ہیں، اس میں تو نہیں ہوتے، جیم، ہا، بچے ایسے کرتے ہیں، ہو، ہونٹ بالکل آگے نہ آئے نہ گول ہو، ہو، دال، زال، را کو ایسے کرتے ہیں، رو، ہونٹ نہ گول ہونے پائے، را، زا، زا میں ٹھیک ہے سیٹی ہے، لیکن زا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ کو ایسے کیا جائے یا ہونٹ ایسے جائے۔ زو، آنکھیں بھی نکالی جائیں اور رخسار کو بھی ٹیڑھا کر دیا جائے، چہرے سے بھی کیا بنا دیا جائے، جیسے تکلف نہیں۔ زا، سین، بچے ایسے کرتے ہیں، سین، شین، جھٹکا بھی دیتے ہیں، ہونٹ بھی گول کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ صاد، ایسے نہ ہو جائے، سواد، زواد، صاد، واد، توا، توا، زوا، ہونٹ نہ گول ہو، تو، وا، عین، عین، ایسے نہ ہو جائے، غین، ہونٹ بالکل اپنی جگہ رہے، ایسے نہ ہو جائے، غین۔ اسی طرح فا، قوف، بچے ایسے کرتے ہیں، قوف، ایسے نہ ہو جائے، لام، میم۔ اب نون آیا تو ہونٹ گول ہو، نون، واو۔ عموماً ہمارے لوگ اور بعض اساتذہ اور بچے جن پہ ہونٹ گول نہیں ہوتے وہاں کرتے ہیں، اور جہاں ہونٹ گول کرنے ہیں وہاں نہیں کرتے۔ نون اور واو میں لازمی ہونٹ گول کریں، تو یہ 2 حروف ہیں جن میں ہونٹ گول ہوں گے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں واو کے حوالے سے کہ واو بعض کورسز میں، ورکشاپ میں اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے بعض اساتذہ واو کو 3 حرفی نہیں کہتے، 2 حرفی کہتے ہیں، اور اس میں بعض مرتبہ کئی ساتھیوں نے لمبی تھوڑی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واو ہے نا، یہ
तीन हरफी नहीं है। अब देखें वाव यूं लिखा जाता है 1 2 3, ये तीनों मिलके वाव बनते हैं। अब वो कहते हैं कि ये दो हरफी है। बाज कायदों में यहाँ हमजा लिखा होता है जी। अब ये वाली बात याद रखें कि आखिर में वाव है और वाव के ऊपर जज्म है। उर्दू टाइपिंग में ऐसा कोई उर्दू का कायदा कुलिया है कि जब अलिफ के बाद वाव आ जाए तो खुद ब खुद साउंड की वजह से वहाँ ये जो ऊपर जज्म होती है ये हमजा की शक्ल इख्तियार कर जाती है। कोई ऐसा टाइपिंग का मसला है। अरबी उसूल के लिहाज से यहाँ वाव साकिन है। जिस तरह लफ्ज़ है बाबुन, अब आप वक़फ़ करते हैं तो बाब आखिरी बा ही रहती है। तो जब वावुन है तो वक़फ़ करते हैं तो वाव रहता है। वा नहीं, इसको बाज वा पढ़ते हैं, बाज वाव पढ़ते हैं और बाज इसको वा पढ़ते, आखिर में हमजा पढ़ते। ऐसा नहीं है। आए इस हवाले से थोड़ी सी इल्मी बात करते हैं। मैं चंद दिन से अरबी कुतुब का मुताला कर रहा था तो मैंने इस लफ्ज़ के ऊपर गौर किया कि इस पे क्या है। तो मैंने कहा थोड़ी सी बात इस पर तफसीली कर लेनी चाहिए ताकि हमारे असातिज़ा मुअल्लिमीन मुअल्लिमात के ज़हन में वाव के हवाले से बात बैठ जाए। यहाँ वाव है, लफ्ज़ है, मेरी तरफ आप देखिए, लफ्ज़ है वाव वाव। अब मैंने ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से लगा के इस हर्फ को पढ़ा है ताकि आपको लफ्ज़ समझ आए कि हर्फ समझ आए क्या है, वाव। अब देखिए शुरू में भी वाव की आवाज़ है और आखिर में भी है। इंग्लिश स्पेलिंग इसका होगा WAAA, आखिर में भी ये W है। वाव, आखिर में ओ नहीं है कि आप वाव ओ की आवाज़ निकालें। यहाँ जो ओ की आवाज़ निकल रही है ना वाव, वो वाव को होंठ, वाव के ऊपर होंठ गोल करने लाजमी होते हैं तो इसलिए वो आवाज़ निकल जाती है। वरना लफ्ज़ ये है वाव वाव, होंठ गोल करेंगे, होंठ दांत नहीं लगा सकते, होंठ गोल करने से बाहर निकालने से वाव अदा होता है। तो इसलिए वाव, आखिर में आपने वाव को साकिन पढ़ना है। अब देखें अरबी कुतुब के अंदर इस हर्फ के बारे में लिखा है इस्मुल वावे। अब देखें आखिर में वाव है, वा अलवावो लिल जमे, अलवावो आखिर में वाव है, अलवावो आखिर में वाव है, अलवावो लिल अत्फे आखिर में अलवावो वाव है, अलवावुल मद्दिया इसमें भी वाव नहीं है, वाव है, अलवावुल लय्यिना जी जमा वावात है, वाआत नहीं है, वावात जमा है। इसी तरह अलवावुल मुतहर्रिक जी। इसी तरह कहते हैं कि वो 5 हरूफ कि जिनकी उन जैसी कोई और शक्ल नहीं थी इसलिए उनको नुक्ते नहीं दिए, उनके बारे में कहते हैं हिया अल अलिफ वल लाम वल मीम वल हा वल वावी वल वावी, यहाँ भी वावी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी तरह कहते हैं अलवावुल मुशद्दद, यहाँ भी लफ्ज़ वाव इस्तेमाल किया है। कहते हैं अलवाव मुरक्कबुन मिन सलासत खुतूतिन के वाव 3 खतों से बना है, यहाँ भी अलवाव है। आगे चलते हैं सुबहुल आशा, ये अलामा अलकशंदी मरहूम की बड़ी 14-15 जिल्दों में किताब है, उसके अंदर हुरूफ ताजी पे बहस करते हुए वो कहते हैं अलवाव हिया शक्लुन मुरक्कबुन, यहाँ लफ्ज़ वाव इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरूफ के अंदर जो हरूफ के ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश आते हैं, ज़बर ज़ेर पेश ये असल में क्या थे, बाज़ कहते हैं नुक्ते हैं, बाज़ कहते हैं ज़बर जो था ये छोटा अलिफ लिखा हुआ था और ज़ेर छोटी या करके लिखी हुई गई, और पेश जो है इसकी इब्तदा छोटे वाव से है। जहाँ पेश आता था दू अलहम्दु तो दाल के ऊपर छोटा सा वाव लिखा है। इसके बारे में कहते हैं अलवाव सगीरतु इशारतुन लिज़्ज़म है कि ये छोटा वाव है, यहाँ भी अलवाव लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी तरह डिक्शनरियों में लुगात में आता है बाबुल वावे जी। इसी तरह हरूफ जोफिया जो हवा से अदा होते हैं, हरूफ मद्दा अलिफ वाव या, उनके बारे में अहले तजवीद ने लिखा है जी अल मजमूअतुल जोफिया जी, वो हरूफ जो मुंह से अदा होते हैं उनका मजमूआ है यल अलिफ वल वाव वल या, यहाँ भी लफ्ज़ वाव इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह बहुत सारी किताबों के अंदर रिबा लफ्ज़ जो है रिबा जी, रिबा, अब यहाँ वाव लिखा हुआ है। तो रिबा और ज़का और हया इस तरह लफ्ज़ों के बारे में अहले इल्म लिखते हैं, कहते हैं कुतिबत अर रिबा व ज़का बिल वाव ज़ाइदा के रिबा और ज़का को जो है ना वाव ज़ाइदा के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो इन्होंने भी लफ्ज़ वाव इस्तेमाल किया है। इसी तरह होंठों वाले जो हरूफ अदा होते हैं उनको अरबी में कहते हैं अलमजमुअतुल फमिया, मुंह से होंठों से अदा होने वाले हरूफ मुंह से, और उनके बारे में कहते हैं हिया अल्फा वलबा वलमीम वलवावे, यहाँ भी लफ्ज़ वाव इस्तेमाल किया है। इसी तरह फ़िक़्ह शाफ़िया की किताब है अलमनहज फ़ी फ़िक़्ह शाफ़िया,
उसमें रस्म उस्मानी पे बहस करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कलिमतुर रिबा बिल वाव, कि रिबा का जो लफ्ज़ है ये वाव के साथ इस्तेमाल किया लिखा जाएगा, तो इसमें भी लफ्ज़ वाव है। इसी तरह इब्न सीना ने हुदूस हरूफुल अरबिया जो किताब है इसके अंदर लिखा है वह अमल वाव साबिततो, वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरूफ तहजी में 3 हरूफ वाव मीम नून, इनको हरूफ मकतूबी और मलबूबी भी कहा गया। मतलब ये है कि सीधा पढ़े उल्टा पढ़े, दोनों तरफ से ये वाव, दोनों तरफ से मीम, दोनों तरफ से नून बनते हैं। अगर वाव के आखिर में वाव नहीं है तो उल्टा पढ़ने से ये वाव नहीं बनेगा, उल्टा पढ़ने से तो आव बनेगा, तो मकतूबी मलफूजी वाली बात फिट नहीं आएगी। इसी तरह तहसीरुल मतालिब में एक फसल है, वहाँ है अल-फस्लु सादिसु फी हर्फिल वाव, कि छठी फसल हर्फ वाव है। यहाँ भी वाव के बारे वाव लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वावे। बाज़ में लिखा है हुस्नुल नस्रुल मरजान फी नज़्म रस्मिल कुरान, जो अरबी की किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है तज़दादु बाद वाविल जम फी आखिरिल कलिमति, कि इस कलिमे के आखिर में जो है ना वो वाव लाएंगे। तो यहाँ भी वाव लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वाव लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी, वाव अलिफ और आखिर में वाव। और बाज़ में लिखा है वकानतिल वाव बिज़्ज़ाइदा, यहाँ वाव जो है ज़ायदा है। इसी तरह ये जो तीसरा हर्फ है वाव, इसके बारे में तसल्ली हो गई कि ये जो तीसरा हर्फ है ये वाव है, ये तीसरा हर्फ हमजा नहीं है। उर्दू लिखने में कायदों में इसके ऊपर जज़म नहीं डाली जाती, इसके ऊपर जो है वो हमजा आ जाता है, तो इससे गलतफहमी ना हो। इसको पढ़ना है वाव, शुरू में भी वाव, शुरू में आखिर में भी। तो हमने बात अर्जी की आज के सबक के अंदर कि 29 हरूफ में से 2 हरूफ ऐसे हैं नून और वाव। वाव इनमें होंठ गोल होते हैं, नून में 1 मरतबा गोल होता है और वाव में 2 मरतबा गोल होते हैं, शुरू में भी और दरम्यान में मुंह खुलते आखिर में होता है। इसकी वजह हम बाद में बयान करेंगे क्यों होंठ गोल होते हैं। बाकी जो 27 हरूफ हैं अलिफ बा ता सा जीम हा हा, वो बच्चे से ऐसे पढ़ाएं, खुद पढ़ के देखें, आईना रखें, शीशा रखें कि आपके होंठ उस पर गोल होते हैं नहीं। मसलन सौद स्वाद, देखिए पता चल रहा है, वोद वुआद तुआ, जो होंठ गोल हो रहे हैं नून और वाव के सिवा किसी हरफ में अगर होंठ गोल होते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस तरह पढ़ने के बाद जो कुरान करीम पढ़ा जाएगा तजवीद के लिहाज से, इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से वो दुरुस्त नहीं होगा। अगली वीडियोस तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।